So, hello everyone, a warm welcome to all of you, a wonderful audience like जिन्होंने संडे वाले दिन अपने लिए टाइम निकाला और इस सेशन को अटेंड करने का डिसीजन लिया. So, huge and warm welcome and huge round of applause for all of you guys. Really, because one decision like हम throughout a day में बहुत सारे decision लेते हैं, but एक single decision can actually change this, our life. And आपका ये जो decision है session को attend करने का, it is the best decision. It shows that you are concerned about your health. And trust me, in this session, you will be getting a huge value जिसको आप अपने daily routine में apply कर सकते हैं to manage, your health concern. So this session is arranged by the Satviko on the topic superfood to manage diabetes. So before moving ahead, let me introduce myself. So I am dietitian Alpna Verma. I am a MSc qualified dietitian and I am the certified Ayurveda counselor, diabetic educator. Aman, you can show the next slide. Yes, so this is little bit intro of mine. As I told you, I'm MSc qualified dietitian, a diabetic educator, certified Ayurveda counselor. Now it's been 4 years I'm working in this field, and I work with Max Hospital, VLCC, White Healthcare, and I arrange lots of health talks, health sessions in colleges and schools and different societies. Now I'm doing, live sessions after this pandemic. So here are a few pictures of my work you can see on the screen. Next slide, month. Yes, so these are the few pictures of my results, my health talk. I do the yoga session also. So why to introduce myself? Why I'm showing this picture so that you will be having an idea what kind of experts Satviko brings for you. Okay, so you will be getting lots of knowledge after this session. And if you have any doubt, any query, you can put on in the chat box. By the end of this session, we will be addressing your queries. So before moving ahead, you should know like why this session is so much important. On next slide, please. Like अगर हम डायबिटीज की बात करें फ्रेंड्स, डायबिटीज अगर हम इट इज मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. अगर आप अपने सर्कल को भी एनालाइज करेंगे, आप देखोगे कि आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव में या फिर आपके फर्स्ट डिग्री ऑफ सर्कल में भी आपको डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे. अगर हम इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की बात करें तो वो हमें ये बताता है कि लाइक 2011 में देयर वर 65 million of people who were suffering from the diabetes. And ये जो डेटा है 65 million people is going to increase up to 80.3 million in 2025. So there's a huge need, there's a huge demand to do such kind of talk session to create more awareness among the people so that we can actually tackle the diabetes. And yes, on the top of it, we are living in the pandemic era जिसने हमें सभी को अलार्मिंग टाइम पे शो किया है. एंड पैंडमिक से हमें एक और चीज सीखने को मिली है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, पैंडमिक हमें बताता है कि डायबिटीज वालों को एक एक्स्ट्रा कंसर्न, एक एक्स्ट्रा केयर देने का बहुत रिक्वायरमेंट है. वाई? बिकॉज वी ऑल नो लाइक डायबिटीज में हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. एंड वी ऑल नो जो कोरोना हो गया या कितने भी वायरसेस हो गए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो उन्हीं को सबसे ज्यादा टैकल करता है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, राइट? तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है जो आपको प्रोन कर देती है इस तरीके के इन्फेक्शन के लिए. एंड इट इज जस्ट स्टार्टेड बिकॉज अभी पैंडमिक आया, कोरोना से और भी सारे वायरसेस आने वाले हैं. दिस इज द हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू अगेन कि आपने डिसीजन लिया इस सेशन में अटेंड करने का. सो अमन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So as I told you, I am a diabetic educator. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा. I request all of you to mute yourself. How many you can check it? Okay, just show the next slide. So this is just a graphical representation. I tried to put into the graphs. It's showing like 2021 में इतना था, then 2025 तक ही इतना होने वाला है. So this is the high time to take care of your health. Next slide. See, as I told you, like I'm a diabetic educator. So आज का जो topic है वो है हमारा superfood for the diabetes management. But before going to the straight away to the topic, I would like to throw some light on the diabetes. What actually diabetes is. ओके, डायबिटीज में क्या होता है फ्रेंड, जब हम फूड का इंटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट,
वो ब्रेक डाउन होते हैं टू प्रोड्यूस द एनर्जी, राइट, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए। गाइस इस सेशन को आप इंटरेक्टिव रखिएगा, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इनटू द चैट बॉक्स। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड शो करिए अमन, हाँ पहले वाला, तो इससे भी पहले वाला, हाँ दैट्स इट। तो डायबिटीज हमें क्या होता है, फूड जो हमारा हो रहा है बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है जिससे हमें एनर्जी मिल पाए, ताकि हम थोड़ा डेली रूटीन का जो अपना वर्क है वो हम अच्छे से कर पाए। तो कार्ब्स हमारा ब्रेक होता है ग्लूकोज में, जैसे हमने खाना खाया ब्लड में वो ग्लूकोज आ गया, अब ये जो ब्लड में ग्लूकोज आया है इसको यूटिलाइज होना चाहिए बाय दिस सेल्स, बट इन डायबिटीज वो यूटिलाइज नहीं होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, मीन्स व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल रेज and cross the normal range of your blood sugar, then it is known as the hyperglycemia। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, जल्दी से हम टाइप पे आते हैं। टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे जो ब्लड शुगर में ब्लड में जो हमारे शुगर का लेवल है, जो ग्लूकोज आया है, अब उसको यूटिलाइज होना चाहिए बाय द सेल्स। सेल्स तक उस ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है हमारा इंसुलिन, एक हार्मोन होता है, आप व्हीकल की तरह समझ सकते हैं, एक काइंड ऑफ रिक्शा हो गया या बाइक हो गया, उस बाइक पे बैठ के हमारा ग्लूकोज सेल्स तक जाता है। ठीक है, बट क्या होता है कई बार हमारी बॉडी में इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो पाता, या फिर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता। रीजन कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन, आपका जेनेटिक्स हो गया या जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो तो जब हमारा बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, हमारी बॉडी इज नॉट सिक्रेटिंग इनफ इंसुलिन, देन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज दी योर टाइप 1, जिसमें जनरली आपने देखा होगा लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं। तो दिस इज दी टाइप 1 डायबिटीज। नाउ अब क्या होता है कि हमारा इंसुलिन बॉडी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है, ग्लूकोज को लेके जा रही है सेल तक कि वो यूटिलाइज कर ले, बट सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज आपकी सेल्स के ऊपर फैट का लेयर है, राइट, वहां तक पहुंच तो रहा है ग्लूकोज, बट आपकी सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी आपकी जो सेल्स है बॉडी की, वो जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है तब उसको बोलते हैं हमारा टाइप 2 डायबिटीज। एंड ये जनरली उन लोगों में देखा जाता है जिसमें जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो अब जो ओवरवेट होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा ये टाइप 2 डायबिटीज देखा जाता है। आपको मैं एक एक्टिविटी दूंगी, लाइक आप, आई थिंक आई कैन सी दी पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 100। तो आप लोगों में से आप मुझे बताइए कितने लोग डायबिटीज है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, यू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स मी। और अगर आपने कोई, अगर आप डायबिटीज नहीं, डायबिटिक पेशेंट नहीं है, बट अगर आपने किसी अपने सर्कल में कोई ना कोई डायबिटीज पेशेंट देखा है, तो जस्ट टाइप 1। Come on guys, do comments in the chat box, make this session interactive so that I can deliver my best. Yes, my grandfather. Okay, great. Anyone? Guys, participate कीजिए. Great, my dad, my in-laws. Okay, great, great. See, participation बहुत जरूरी होता है इस तरीके के सेशन में, बिकॉज इससे क्या होता है, हम एनालाइज करके और भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर कुछ मिस आउट हो रहा है तो आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, मच मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर वेरी गुड, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, माई फ्रेंड्स अदर्स। तो अभी आपने देखा कि हमारा एक सिर्फ 100 लोग ही है अभी, उनमें से ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम हर कोई रिप्लाई करे, तो कितना ज्यादा प्रिविलेंस है, कितना ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है। तो उनमें एक करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऐसा नहीं होता कि आपको, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो आप जस्ट को बस मेडिसिन लेना है या कुछ, आपको एक अवेयरनेस, एक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली डायबिटीज इज। ओके, तो अभी तक हमने बात करी थी जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट हैपन, अगर ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो डाउन हो जाए, तो मीन्स ये अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रही है, तो क्या करिए, ब्लड ग्लूकोज रेज हो, आपने खाना खाया तुरंत यूटिलाइज कर लिया, तुरंत यूटिलाइज कर लिया। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा बहुत ज्यादा मील गैप करने से, तो लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स जो है बहुत डाउन चला जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज होता है उससे डाउन चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, इसमें क्या होता है, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप लॉन्ग मील गैप करें, या फिर यू आर ईटिंग लेस। ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया की जो अवेयरनेस की बात करें वो बहुत कम है। जनरली अगर हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, इसके मतलब बच्चों को भी हो जाता है, स्कूल के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, खेलते खेलते बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस हाउ टू मैनेज हाइपोग्लाइसीमिया, दे डोंट नो। ओके, तो
राइट, बहुत सारे लोगों ने बताया. सो दिस सेशन इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. पे फुल अटेंशन टू दिस सेशन. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी लर्निंग अ लॉट. तो नेक्स्ट स्लाइड अमन. ओके, सो ये डायग्नोज है. लाइक हमें अभी तक हमने पता किया कि डायबिटीज बहुत नहीं होता हो क्या गया, है. बहुत नहीं हो गया. हेलो, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. Kindly mute yourself, sorry. Guys, I request all of you to kindly keep your mics on mute so that we can have a hassle-free session. Thank you. So that किसी को डिस्टर्बेंस ना हो. तो गाइज अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज क्या होता है, कितने टाइप का होता है. अब आपको कुछ लेवल्स पता होने चाहिए. अपनी डायबिटीज को डायग्नोज करना आपको आना चाहिए. ओके, तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका 110 mg से लेस है तो दैट इज ओके. बट अगर आपका 100 और 110 और 120 के बीच में आ रहा है, 126 के बीच में, दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक. ओके, अगर 120 से अबव आ रहा है दैट मीन्स आपकी डायबिटीज कंफर्म हो गई है. ओके, अगर हम एक टेस्ट होता है आफ्टर हैविंग 2 आवर, आफ्टर हैविंग मील, 2 घंटे बाद का एक टेस्ट होता है आफ्टर 2 आवर्स का. अगर आपका वो टेस्ट 126 mg तक आता है देन यू आर नॉर्मल. ओके, बट अगर भैया आपका 126 से लेके 200 mg पर डीएल तक आता है दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक. और 126 mg पर 200 mg पर डीएल से ज्यादा आता है दैट मीन्स यू आर डायबिटिक. सो दीज आर द फ्यू ranges that you should know if you are a diabetic. और अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज है, आपके फ्रेंड सर्कल में डायबिटीज है, तो यू शुड नो दिस काइंड ऑफ रेंजेस. नेक्स्ट स्लाइड अमन. तो अभी हमने डायग्नोज भी कर लिया. बट कुछ जब भी हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस होता है, लाइक कोई वायरल इन्फेक्शन आता है या कोई भी डिसऑर्डर होता है, तो हमारी बॉडी सिम्टम शो करती है. राइट, जैसे कोई इन्फेक्शन ज़्यादा तो हमारी बॉडी का जल्दी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हमें कोल्ड स्नीजिंग हो जाती है. तो इसी तरीके से हमारी बॉडी कुछ साइंस एंड सिम्टम शो करती है अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज डेवलप हो रहा है. हाउ टू रिकोगनाइज, यू कैन चेक कि आपको ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, या आपके जो भी लव वन है, जो भी आपके फैमिली में मेंबर है जिनको डायबिटीज है, तो आप उनकी सिम्टम्स का लेवल चेक कर सकते हैं. लाइक कितना ज़्यादा ये सिम्टम्स हो रहे हैं. फर्स्ट आता है पॉलीडिप्सिया. आप देखोगे पॉलीडिप्सिया मीन्स बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीने का मन करता है. देन पॉलीयूरिया, अब पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो पॉली यूरिनेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा नॉक्टर्न्यूरिया, मीन्स आपकी वो नाइट के टाइम पे यूरिनेशन होता है. देन विजुअल डिस्टर्बेंस, आपकी हमारी जो वेन्स होती है आईज में छोटी छोटी, वो हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कैपिलरीज, इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट. देन फटीक होता है, वेट लॉस होता है. और वी आर प्रोन टू कैच मोर ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज हमने जैसे भी बताया कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो यू विल बी गेटिंग मोर इन्फेक्शन इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट. So these are the few sign and symptoms. जनरली नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज से हुई होगा, इसका कोई और भी रीजन हो सकता है. सो आई सजेस्ट यू कि आप अपने साइन एंड सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें, कंसल्ट करें एंड रन अ टेस्ट टू गेट दी आप रेंज पता होना चाहिए. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड अमन. यस, तो अभी तक हमने पढ़ा कि डायबिटीज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, रेंजेस क्या होती है नॉर्मल, एंड व्हाट आर द सिम्टम एंड साइंस ऑफ द डायबिटीज. अब हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज को मैनेज कैसे करना है. अगर आपकी फैमिली में कोई है तो यू शुड बी नो कि डायबिटीज मैनेज कैसे हो. राइट, तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास फोर फोल्ड अप्रोच होती है, जिसमें वन आता है हमारा ड्रग अप्रोच. मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, अगर आप प्री डायबिटिक होते हैं तो उस केस में हम रिवर्स कर सकते हैं. बट अगर आपको डायबिटीज सॉरी डायग्नोज हो जाता है, यू नीड टू कंसल्ट योर डाइटिशियन एंड डॉक्टर टू एंड यू नीड टू स्टार्ट मेडिकेशन. तो फर्स्ट थेरेपी आता है हमारा ड्रग थेरेपी, जो कि आपके डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो आपका सजेस्ट करते हैं. देन सेकेंड आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. फ्रेंड्स, कोई भी जितने भी हमारे डिसऑर्डर हैं, इट विल बी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या आपका कोई वेट मैनेजमेंट हो गया, या डायबिटीज हो गया, ऑल मैक्सिमम जो हमारा है 99% हमारे जो डिसऑर्डर होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं हमारे लाइफस्टाइल. राइट, और भी रीजन होते हैं जेनेटिक, बट 99% जो हम डिसऑर्डर डेवलप करते हैं वो हमारे होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन्स आप अच्छा खाना नहीं ले रहे हैं, आप टाइम से सो नहीं रहे हैं, फोन में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बहुत स्क्रोलिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अनशन देख के. तो अगर आपका एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, प्रॉपर दिनचर्या नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है,
तो यू कैन डेवलप द डायबिटीज। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले फोकस करना है अपनी डाइट पे, ठीक है। जो मेडिसिन का पार्ट है इट इज ऑफ डॉक्टर पार्ट। नाउ कमिंग टू द डाइट। डाइट में क्या होता है गाइस, बहुत सारी प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। इन दिस सेशन वी विल बी लर्निंग कि कुछ ऐसे सुपर फूड क्या है जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अगर आपकी डाइट उन सुपर फूड्स में लैक कर रही है तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल सकता है, चाहे आप कितना मेडिकेशन करें, बट अगर आपका डाइट में वो सुपर फूड्स जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ ऐड नहीं है, यू विल बी not, you are not able to improve your blood sugar levels. So I want a quick reply from all of you कि कौन कौन लोग फिजिकल एक्टिविटी करता है, 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी कौन कौन करता है। जस्ट टाइप यस और यू कैन टाइप मी। आर यू डूइंग 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी गाइस? कम ऑन कम ऑन। ग्रेट ग्रेट सोमेश, स्वाति, ग्रेट ग्रेट, खुशी सिंह, ग्रेट रेखा जी, ग्रेट शुभांगी। सॉरी अगर मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। ग्रेट रितिका जी। तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं 30 मिनट्स का एक्टिविटी, राइट। बट जब आपको डायबिटीज डेवलप हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 30 मिनट्स की एक्टिविटी करना इनफ है? इज इट इनफ फॉर यू? नो गाइस, जब हमें कोई बीमारी डेवलप हो जाती है यू नीड टू पे लिटिल बिट अटेंशन। इसने बोला निहारिका जी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी। जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं आई रिक्वेस्ट कि कम से कम 30 मिनट की एक्टिविटी करें। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि किसी भी फिटनेस ट्रेनर से, योगा ट्रेनर से थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, ओके। बिकॉज हमारा मोटो क्या होना चाहिए? ऑलवेज डू बेटर देन बिफोर, ओके। एंड नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल चेंजेस। नाउ बिहेवियरल चेंजेस मीन्स कि हम खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। हमने डाइट तो ले लिया, वर्कआउट प्लान तो ले लिया डाइटिशियन से, बट हम क्या करते हैं फटाफट खा लेते हैं। हम बहुत ऑक्यूपाइड हैं, लेट नाइट स्लीप, बहुत ज्यादा फोन पे लगे रहते हैं, कुछ बैड हैबिट्स। सो ऑल दीज चेंजेस कम इनटू द बिहेवियरल चेंजेस। तो डायबिटीज का जब मैनेजमेंट होता है तो किसी भी एक अप्रोच पे वर्क नहीं करना होता। वी नीड टू क्लब ऑल अप्रोच एंड देन वी नीड टू मूव, okay. So this is all about the management. You need to work on your diet, your activity and your behavioral changes. So next slide please. So yes, सुपर फूड्स जिसके बारे में आज का सेशन है। अब डाइट में हमें ऐसे कौन से फूड इंक्लूड करने हैं जो आपको डायबिटीज मैनेज में करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो नाउ मूविंग फर्दर, बिफोर नोइंग कि क्या क्या फूड ऐड करने हैं, यू शुड नो व्हाट इट एग्जैक्टली ये जो टर्म है सुपर फूड, व्हाट डज इट मीन, आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ अ सोशलाइजेशन, सोशल मीडिया का है। तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज्यादा मिसगाइडेंस और उतना ज्यादा कंफ्यूजन। So here in this session, I am going to tell you what exactly superfood. Superfood friends कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि मंगल ग्रह से आया है, कोई भी डिफरेंट चीज नहीं है। इट इज दीज आर ओनली फूड्स जो कि हमारे दादी नानी टाइम से हम खाते आ रहे थे, जिनको आज आज हम भूल चुके हैं, ओके। सो दीज आर दी फॉरगॉटन फूड्स जिनको हम भूल चुके हैं, एंड दीज आर दी ट्रेडिशनल फूड्स जो कि हम अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग खाते थे, वही फूड होता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल जो फूड है वो हमारी भूख तो मिटाता है, लाइक पिज्जा, पास्ता, इन सब से अगर हम देखेंगे तो हमारी भूख तो मिट जाती है, बट क्या वो आपकी डाइट में आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या वो आपकी डाइट आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है? क्या उसको खाने से आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है? क्या आपको कोई मेडिकल प्रॉपर्टी मिल रही है? तो आंसर इज नो। तो सुपर फूड क्या होते हैं? ये हाईली न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, ओके। अगर आप उसका कुछ पार्ट भी लेते हैं तो इट गिव यू द एन नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी में ना सिर्फ आपकी बॉडी को नरिश करते हैं, बट इनका एक मेडिकल प्रॉपर्टी होता है, आपकी बॉडी को अंदर से हील कर रहे होते हैं, राइट। So I think I am able to understand you, like these are the nutrient dense food. हमारे ट्रेडिशनल फूड होते हैं वो फूड जिनको हम भूल चुके हैं बाय अभी क्या हो रहा है ना, हम वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो कर रहे हैं कि अपना कल्चर पीछे छोड़े जा रहे हैं, एंड वेस्टर्न जो हमारा फॉरेन कंट्रीज है वो हमारे कल्चर को अपना के उसको पॉपुलराइज कर रही है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, लाइक बहुत लॉन्ग 4 year बैक आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, एक रिसर्च था कैंसर के ऊपर। तो उसमें था कैंसर का एक रिसर्च मिला है लाइक गोल्डन मिल्क, और उसमें एक लिंक था, तो आई जस्ट क्लिक इट वाज हल्दी का मिल्क। वो मिल्क जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, जब चोट लग जाती थी तो हमारी दादी दे देती थी,
आप हम कहीं थक के आते थे तो हम पीते थे, बचपन से पीते आ रहे थे। तो उस पर उन्होंने रिसर्च करके उसको एज पॉपुलराइज कर दिया गोल्डन मिल्क। अगर आप बाहर भी जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग टर्मरिक लाटे, जैसे हमारा कॉफी लाटे होता है, तो वहाँ पे वो टर्मरिक लाटे देते हैं। तो कैन यू सी कि हम लोग कितना ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, बाय द वेस्टर्न कंपनीज, इसको कितना मार्केट कर रहे हैं। तो सुपर फूड हैविंग द हीलिंग प्रॉपर्टी, आपको कहाँ मिलेगा ये सुपर फूड? कहीं नहीं गाइस, यू नीड टू गो इनटू किचन, आप अपने किचन को देखिए। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स हैव वन आवर फर्स्ट सुपर फूड। यस, फेन्यूग्रीक, मेथी दाना। तो कैन यू गेस, ये कोई डिफरेंट फूड नहीं है, मेथी दाना हम बचपन से बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। नाउ हाउ मेथी दाना कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग योर प्रॉपर्टी? आपने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, मेटफॉर्मिन, जो कि जनरली डायबिटीज में दी जाती है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है मेटफॉर्मिन की, जो जिस तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करती है, उसी तरीके से आपकी डाइट में मेथी वर्क करता है। ओके, तो मेथी का, फेनुग्रीक सीड का आपकी डायबिटीज को मैनेज करती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोकती है। इसमें दिस इज हाई इन फाइबर, एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और ये क्या करता है, जैसे हमने खाना खाया और एकदम से हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, तो एकदम से इंक्रीज नहीं होने देता, धीरे 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 वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का रिलीज करवाता है, जिससे आप मैनेज कर सकते हैं अपना डायबिटीज। ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट सुपर फूड। अब इसको मेथी दाना को लेना कैसे है? कोई भी फैंसी तरीका या फिर कुछ भी न्यू स्टाइल आपको नहीं अपनाना है। यू नीड टू गो बैक इन योर ट्रेडिशनल। किस तरीके से हम यूज करते हैं मेथी दाना गाइस? कोई यूज करता है? कौन कौन मेथी दाना अपने घर में यूज करता है? टेल मी, कम ऑन, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यस, मी, वेरी गुड, आई डू। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कैसे यूज करते हैं आप बताएंगे मुझे? हाउ यू यूज मेथी दाना इन योर डाइट? कैन यू टेल मी? वाटर में, राइट राइट। ओके, रात को भिगो कर। तो अब मैं आपको अब जल्दी से बताती हूँ कि इसको यूज करने से पहले सबसे बेस्ट तरीका होता है दाल में तड़का मार के आप इसको यूज करते हैं। मेथी दाना के लड्डू आप बना सकते हो। नंबर थर्ड, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मेथी दाना को ओवरनाइट सोक करें, राइट, एंड देन उस पानी को हल्का सा ल्यूकवार्म करके अलोंग विद दैट सीड यू नीड टू गल्प इट डाउन, आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट दी फेनुग्रीक सीड मीन्स योर मेथी दाना लेने के तरीके मैंने आपको बता दिए। आई होप फ्रॉम टुडे यू विल बी हैविंग दिस, अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट सुपर फूड। यस, अब अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड का, ये तो इतना सुपर फूड है ना, इतना पॉपुलर हो गया है। लाइक मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते क्या, तो फ्लैक्स अगर मैं डाइट में जनरली अगर मैंने अवॉइड कर दिया है, एम आई विजिबल टू माई स्क्रीन इज विजिबल, my video? Okay, I just got this. Okay guys, so without, so next yes, so we are talking about the अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। ये वो सीड्स हैं, अगर स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट के डाइट में ऐड नहीं करते, तो दे आस्क मी यार फ्लैक्स सीड्स, so this is again the अलसी food, this is the super food। ओके, सो दिस इज हाई इन फाइबर, ओमेगा 3 एसिड। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ना सिर्फ आपको डायबिटीज में मैनेज करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो सेंट्रल ओबेसिटी है, उसमें भी आपको रिलीफ देता है, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी को कम करता है, 10 आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। और जो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, लाइक आपके किडनी डिसऑर्डर हो गया, डेवलप कर लेते हैं बाद में, किडनी डिसऑर्डर हो गया या हार्ट डिसऑर्डर हो गया, तो उसमें भी प्रिवेंट करने में आपकी मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे लेना है अलसी के बीजों को? तो अलसी को बीज के लेने का आप इसका ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब जनरली हमें ओमेगा 3, ओमेगा, इसके हमें टैबलेट्स भी मिलते हैं, तो वो फिश ऑयल होता है। तो इंस्टेड हैविंग दैट फिश ऑयल, यू कैन गो फॉर एंड यू कैन सर्च दी सम नेचुरल सप्लीमेंट। और अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है तो स्ट्रेट अवे यू कैन हैव फ्लैक्सीड ऑयल इन योर डाइट। ओके, तो अलसी के बीज अगर इसे पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, सोक करके ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सबसे बढ़िया हमारा है ना जामुन। जनरली सबसे मेन क्वेश्चन डायबिटीज वालों को यही लगता है कि हमें फ्रूट कौन सा खाना है, डायबिटीज हो गई तो हमें तो फ्रूट खाना ही नहीं है, हम तो खा नहीं पाएंगे, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए। तो हेयर इज दी सुपर डुपर फ्रूट, जो कि आप डे खा सकते हो। ये जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी, ना सिर्फ इसका फ्रूट इंपॉर्टेंट है, इसकी गुठली, इसके लीफ, इसके जो सीड है, इंडियन ब्लैकबेरी का जो सीड है वो, और इसकी लीफ, ये पूरा का पूरा फ्रूट ऐसा है जो जिसका हर पार्ट आपको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉपर्टी देगा। तो
अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर आप डायबिटिक है या आपके घर में कोई है, तो उनको आप रिकमेंड कीजिए। ये क्या करता है, आपके वो बॉडी में जो शुगर स्पाइक होता है, शुगर एकदम से हाई चला जाता है या फिर एकदम से लो चला जाता है, तो उसको एक नॉर्मल रेंज में, जो उसका डिजायर रेंज है, उसमें लाने में आपकी मदद करता है। नाउ आप जामुन के गुठली का पाउडर ले सकते हैं, इसकी पत्ती को उबाल के पानी पी सकते हैं, और सिंपली जामुन का फ्रूट और जामुन का स्मूदी बना के यू कैन इजीली एंजॉय योर डाइट। So I hope, am I clear to you? So इंडियन ब्लैकबेरी। नेक्स्ट आता है हमारा सिनेमन, दालचीनी। सिनेमन अगेन हमारा सुपर स्पाइसेस कहाँ मिल रही है? अगर अभी अभी तक आपने देखा होगा, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताया जो कि हमें नहीं पता है। एक्चुअली दीज ऑल आर दी फॉरगॉटन फूड। हमें लगता है कि हमें डायबिटीज के लिए या किसी और के लिए हमें कुछ सुपर फूड ऑर्डर करना पड़ेगा कहीं से। नो गाइस, so super food are easily available in your kitchen. So this is the दालचीनी cinnamon powder. आप पाउडर भी ले सकते हैं, फिर स्टिक्स भी आती हैं। ओके, तो अगेन ये हमारा क्या करती है, हमारा सीरम का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसको लो करती है। अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या एसजीपीटी का रेशियो सही नहीं है, देन यू कैन यूज द सिनेमन। तो कैसे लेना है? आप सिनेमन को शहद में मिला के ले सकते हैं। अगर शहद में मिला के ले सकते हैं, आप इसको चाय में ले सकते हैं, अपनी किसी स्मूदी में डाल सकते हैं, आप मिल्क के साथ ले सकते हैं। सिनेमन मिल्क इज वेरी गुड फॉर द डायबिटीज पेशेंट। ओके, तो नाउ ये हमारा हो गया सिनेमन, दालचीनी। तो कितना लेना है? जिन्हें लोगों को लगता है चुटकी भर लेना है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपको इसका मिनिमम 5 to 6 ग्राम डेली आपको कंज्यूम करना है दालचीनी का। Now moving to the next slide is the barley water, जौ का पानी guys. This is very well known by all Indian houses. I think आपको पता होगा जौ का पानी। किस किस को पता है? Who knows about the barley water? सुना है, पिया है कभी आप लोगों ने? Very good. निहारिका knows. Great. Guys do participate. मोनिका ने नहीं सुना, so okay. तो बार्ली वाटर क्या होता है मैं बता देती हूँ, काफी लोगों ने नहीं सुना है। तो बार्ली इज अ जौ। जौ आता है हमारा, जौ जो जनरली नवरात्रों में जिसकी खिचड़ी भी उगती है, तो वो जौ का पानी है। इसको हमें क्या करना है, थ्रू आउट द नाइट आपको सोक करना है, देन यू कैन कंज्यूम इट। कब लेना है? सी, बार्ले का एक मेन जो फंक्शन होता है, एक तो होता है वाटर रिटेंशन, रिमूव करता है। तो अगर आपको बॉडी में स्वेलिंग है या सेंट्रल ओबेसिटी, यू कैन हैव दिस बार्ले वाटर। नाउ अगर आपका ब्लड शुगर लेवल, जो खाना खाने के बाद जनरली देखा होगा कि एकदम से स्पाइक हो जाता है, ओके, फॉर दोज कैन हैव बार्ले वाटर आफ्टर हैविंग योर मील। आपने अपना मील लिया, मील कंप्लीट करने के बाद यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ बार्ले वाटर, जिससे वो क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। आपके जो कार्बोहाइड्रेट का रिलीज है आपके ब्लड में, वो धीरे धीरे कराएगा, उसको स्लो कर देगा। so you can manage the spike of these sugars. Now coming to the next food अरे is भाऊ सुंदर पिचाई food. I request all of you to mute yourself guys so that बाकियों को disturbance ना हो. Yes, next superfood is the oats. We all know about oats, जई, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, इज हाई इन फाइबर, बीटा ग्लूकन्स मिलते हैं इसमें, जो कि बहुत ज्यादा रिच है फाइबर में। फाइबर अगर मैं एक टर्म अपने आप में एक्सप्लेन करूंगी तो पूरा सेशन चला जाएगा। फाइबर के एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है डायबिटीज मैनेजमेंट का। ये आपकी बॉडी में आपको लॉन्गेस्ट, आपको गुड सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देता है, आपकी बॉडी में से जो हैवी मेटल्स है उसको भी निकालने में मदद करता है, आपका वेट लॉस देता है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में ओट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ 3 तरीके के आता है, एक तो आता है रेडी टू कुक, एक आता है स्टील कट, और एक आता है रोल। तो सबसे बेस्ट आता है स्टील कट और रोल। अवॉइड यूजिंग इंस्टेंट ओट्स इफ यू आर डायबिटिक, एंड अगर आप ओट्स लेने हैं तो आई सजेस्ट यू गो फॉर द रोल और दिस स्टील कट ओट्स। आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं, आप इसको सिंपल मसाला ओट्स बना सकते हैं, आप इसको मिल्क में ऐड करके भी ले सकते हैं। so this is all about the oats. Now coming to the next food among tomatoes, tomatoes. Yes, टमाटर कोई मंगल ग्रह का नहीं है, दिस इज दी इजीली अवेलेबल जो हमारा वेजिटेबल है उनमें से एक है टोमेटोज। टोमेटोज, वाई टोमेटोज, टोमेटोज में एक एक्टिव कंपाउंड मिलता है लाइकोपीन। अगर आप मेरी डाइट देखो तो मैं भर भर के टोमेटोज, कैप्सिकम बहुत देती हूँ, बिकॉज टोमेटोज में एक एक्टिव कंपाउंड है लाइकोपीन, जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। ये लाइकोपीन क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जो हमारे हार्ट की हेल्थ है
को मेंटेन करता है। तो इसके साथ साथ, क्योंकि जब डायबिटीज आता है ना तो अपने साथ कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन को, डायबिटीज को मैनेज तो करता है, साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस को आने नहीं देता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो इफ यू आर अ डायबिटीज, diabetic patient, then eating a bowl of tomato soup or having tomatoes in your diet, even in the form of vegetables or salad, can help you a lot. So eat tomatoes on daily basis. Now moving to the next superfood is nuts. Yes, seeds and nuts. Guys, ओके, सो हमारा सीड्स एंड नट्स में सबसे पहले आता है almonds, वॉलनट, जो हमारे कैश्यू नट्स होते हैं। हम ऐसा नहीं है सीड्स एंड नट्स बोल दे तो भर भर के खाना है, नो गाइस, इन सबकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, टाइम होता है, दैट यू नीड टू कंसल्ट विद योर डाइटिशियन टू नो। नाउ नट्स में क्या होता है, नट्स हमारा आपका बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, अगेन उसको रिमूव करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, इज हाई इन ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं। अगेन डायबिटीज के साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको रिमूव करते हैं। एंड नट्स आर रिच इन फाइबर, तो आपको गुड सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी देता है, आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते रहते हैं। So if you if you are having 5 to 6 almonds and 2 walnuts in a day, it is the best for you. You can have a handful nuts अगर आप craving हो रहा है, unwanted भूख लग रही है, then instead of going samosa or patties, you can have handful nuts in your diet. So yes, this is all about nuts. And moving to the next superfood, garlic, लहसुन, दिस दी superfood। अगर आपको ठंड लगा हुआ है, पेंडेमिक का टाइम है, गार्लिक के तो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, उसमें से एक है आपकी ब्लड की ग्लूकोज को मैनेज करना, बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है ये। अगर आप मॉर्निंग में एक खाली एक गार्लिक का क्लूव लेते हैं एम्प्टी स्टमक अलॉन्ग विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, तो ना सिर्फ आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, बल्कि आपकी बॉडी में से जितने इन्फेक्शन हो भी जा रहे हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है और आपकी हार्ट की हेल्थ भी बहुत इंप्रूव हो रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज, जो सेंट्रल ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं, उनमें गार्लिक वर्क एज अ मिरेकल। So having a garlic in your diet can improve your blood sugar levels. How to have it, आप इसको रॉ खा सकते हैं, जिन्हें लोग रॉ नहीं खा पाते हैं तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि हम यूज करते हैं कुकिंग में, आप वो यूज कर सकते हैं एज अ ब्रेड स्प्रेड और अपने मील कुकिंग में। तो यूज गार्लिक गाइस। So coming to the next superfood is turmeric. Yes, हल्दी। हल्दी तो आई थिंक सभी लोग लेते होंगे। कौन कौन लेते हैं हल्दी वाला दूध या हल्दी, कौन कौन लेता है? जस्ट show me in your chat box that are you taking haldi or not. गाइस चैट में बताइए। इन मिल्क, यस सोनम लेते हैं, वेरी गुड। स्वाति लेते हैं, आई डू, मी, इन मिल्क, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हमारा टर्मिक क्यों लेते हैं? हम बचपन से, अपने पुरखों के टाइम से हम अपना हल्दी लेते आ रहे हैं। वाई? बिकॉज हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। हर जैसे हर एक प्रोडक्ट का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है जिसको हम पेश करते हैं, तो इसी तरीके से हर सुपर फूड का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी होता है। तो टर्मरिक का यूएसपी है हमारा कर्क्यूमिन, वो एक्टिव कंपाउंड जो आपकी बॉडी में एंटी कैंसरस, जो आपकी बॉडी का जो कैंसर को ठीक करने की पावर रखता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी बहुत मेंटेन करता है। बट अगेन, आप सभी लोग ले रहे होंगे हल्दी का मिल्क, बट क्या मैं मुझे आप बता सकती हूँ कि जनरली क्या होता था पहले पहले के टाइम पे, हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, जब हमारी चोट लग जाती थी और हम हल्दी का दूध पी लेते तो हमें रिलीफ मिलता था, राइट? पहले रिलीफ मिल जाता था। बट अगर आपको अब चोट लगती है और आज अपना हल्दी का दूध पीते तो क्या रिलीफ मिलता है? द आंसर इज नो। वाई? हल्दी में क्या होता है ना, यस निहारिका इज एंटीसेप्टिक, बट क्वालिटी मैटर्स अलॉट। ये जो हमारी स्पाइसेस हैं, जितने ज्यादा इनकी इसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हद तक एडल्ट्रेशन हो रहा है, तो क्वालिटी मैटर्स अलॉट, जो मैं आपको एंड में समझाऊंगी। तो आई सजेस्ट यू टू यूज गुड ऑर्गेनिक थिंग्स इन योर डाइट सो दैट यू विल बी गेटिंग द रियल बेनिफिट। बिकॉज जैसे जैसे हमारे इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करें, वैसे वैसे हमारी बॉडी को हार्म ही हो रहे हैं, हमारी डिजीज में हम और ज्यादा बीमारियों के पास आते रह रहे हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ एडल्ट्रेशन यू डूइंग डूइंग इन योर टर्मरिक। तो टर्मरिक को यूज करना है, मिल्क में आप ले सकते हैं, आप सभी ने बता दिया, यू आर टेकिंग, कुकिंग में यूज कीजिए। बट जब अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है
Okay, so we need to put some extra burden on the turmeric. So उस केस में आप मसालों में तो ले रहे हैं, आप दूध में भी ले रहे हैं, बट एक टर्मरिक एंड जिंजर और ब्लैक पेपर का एक काढ़ा बना के भी आप पी सकते हैं, काढ़ा और टी। ज्यादा नहीं पीना है काढ़ा, बट दिस इज ओनली फॉर जब आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, देन यू कैन हैव इट। और टर्मरिक का एक स्पेशल पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, टर्मरिक में जो कंपाउंड करक्यूमिन जिसकी वजह से हम ले रहे हैं, वो तभी वर्क करेगा जब आप इसको ब्लैक पेपर के साथ लोगे, विच इज अनदर सुपर फूड। आप इस मिनट में चाहे मेंशन ही करें, तो ब्लैक पेपर के साथ ही आप टर्मरिक यूज कीजिए। ओके, so my next slide is the brown rice. Yes guys, brown rice are rich in fiber. आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, सॉरी ग्लाइसेमिक कंटेंट होता है इसका, वो बहुत लो होता है। बट ग्लाइसेमिक कंटेंट मतलब वो लेवल जो आपका ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देता है, जो सिंपल शुगर होती है वो बहुत लो होती है। इट इज कोटेड विद द फाइबर, और इसमें साथ ही साथ फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स जो एक्स्ट्रा एड ऑन किए जाते हैं। So it is best to stabilize your blood sugar level. Having a brown rice in your lunch, a bowl of brown rice along with dal and sabji can help you to maintain your blood sugar level. So moving to the next slide is, yes, so we all now we have done all these superfoods. Now it's time to make few points in your mind to keep in mind. Is the first, quality matters a lot. ये सारे फूड तभी वर्क करते हैं जब आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो, बट अगर किसी में इसमें अडल्ट्रेशन है तो वो आपको उस लेवल तक हेल्प नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अच्छी क्वालिटी का, कोई अच्छे ब्रांड का, अच्छी जगह से आप ऑर्गेनिक चीजें ले रहे हैं। ओके, सो हैव ऑर्गेनिक फूड, एंड इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी जरूर करना है गाइस। ये सुपर फूड बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप इसको कंबाइन करते हैं विद द राइट अप्रोच। So thank you all. I think it's all done from my side, Aman. Yes, guys. So if you have any query, if you want to reach me personally, so I am on Instagram, Facebook, and my YouTube channel is running by the name of Healthy Addict. You can follow the Satviko on Instagram, Facebook, and YouTube channel. I am available on the Instagram and Facebook with the name of Healthy Addict, and my YouTube channel name is the Dietitian Alpna Verma, and Satviko is all over in Instagram, Facebook, and YouTube. So you guys can follow this page. Why I'm saying, because you will getting enough knowledge, you will getting enough value if you are going to follow this page. बहुत ही अच्छा सुपर कंटेंट है, जो आप बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं, जिसमें अगर आप छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हो, you can really make a big change in your life. Thank So you, I think Alpana, thank you. It was a really informative session. thank you so much, I am Aman. sure everyone loved this session. Everyone has, Lord. too much information out of it. So I'm sure it was a great session. Guys, we are opening the Q&A round. If you have any questions, please write it in the chat. Reena Rana from our side will be asking the questions to Alpana. Please put up your questions in the chat. Over to you, Reena. Thank you so much, Aman. Thank you so much, Alpana Verma ji. This was a really great session, very helpful. And both the in-laws are having diabetes, and I know the pain of making sure that they're having healthy food and maintaining their diet is really difficult. They have their own different diet. Right. This was a very helpful session, and I'm sure. Reena. Yeah, and I'm sure that most of the people have somebody or the other in their circle having diabetes. And if you guys have any questions, you can ask it in a chat box. I'll be asking you guys questions now. Yes, guys, make this session fruitful. अगर आपको कोई भी query है, feel free to ask. Okay. Okay, so there is one. How can we consume jamun seeds? Okay, so as I told you, जामुन का जो सीड है, जैसे आप जामुन लेके आइए, सबसे पहले तो आई सजेस्ट कि आप जामुन का फ्रूट खाइए। देन उसके आपके पास सीड्स होंगे, वो आप रख लीजिए। जनरली हम जिसको डिस्कार्ड कर देते, फेंकना नहीं है, उसको रखिए, अच्छे से वॉश कीजिए। देन उसको सनलाइट में उसको ड्राई कर लीजिए, जो भी इसका मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। देन मेक अ पाउडर, यू कैन ग्राइंड इट, and 1 teaspoon of having jamun seeds before 30 minutes of your meal can give you the good result. 30 मिनट पहले आपको 1 चम्मच जामुन के सीड का पाउडर with a glass of lukewarm water, you can have it. Okay, that's great. I'll take one more, like 2 more questions. So does Karela juice is really helpful in for the diabetics, like
person suffering from diabetes? ओके सो बिकॉज ये सेशन थोड़ा शॉर्ट था इसलिए मैं सारे फूड कवर नहीं कर पाई हूँ एंड एक सुपर फूड है हमारा करेला एंड आई रियली थैंक्स टू यू जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है करेला क्या होता है इसका बिटर गॉड इसमें एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे टोमेटो में लाइकोपीन होता है तो जो उसका कड़वापन होता है दैट इज द एक्टिव कंपाउंड वो आपकी बॉडी में क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ा देता है एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ता है तो आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं फ्री रेडिकल्स हैं या भी जितने भी हैवी मेटल्स है वो रिमूव करता है सेकेंडली आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है जो स्पाइक हो जाता है जो अनस्टेबल शुगर रहता है कई बार जनरली होता है कि हमारा फास्टिंग नॉर्मल नॉर्मल ऐसे कई बार होता है कि मील खाने के बाद बहुत ज्यादा हैवी हो गया या फिर रात में हमारा एकदम से ड्रॉप होता है तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल में तो उसको करेला जूस कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है आपने देखा भी होगा अभी कुछ टाइम पहले इन माय एरिया इट हैपेंड लाइक जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं पार्क्स वगैरह तो उसके बाहर एक जना जरूर खड़ा होता है वो कुछ जूसेस दे रहा होता है तो यू कैन हैव दैट जूस उसमें आपका एलोवेरा भी होता है करेला भी होता है और अगेन ये जो वेजिटेबल जूसेस होते हैं चाहे आप जामुन का जूस लें चाहे आप करेला का लें दीज ऑल आर द डिटॉक्स जूसेस तो उसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है हैविंग 100 to 150 ml karela juice on an early stomach early morning empty stomach can help you a lot in maintaining your blood pressure. Oh, sorry, blood sugar. Yeah. Okay. Thank you. I will take one more. Like, we have sugar-free tablets and all. Like, there Right. is a brand. So, is it like advisable for people to have those sugar-free tablets? Is it really good for them, or Okay. is it helpful? Okay. So as I told you, जब भी हमारा मार्केट में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके Mhm. सॉल्यूशन में बहुत सारी पब्लिसिटी होने लगती है बहुत ज्यादा कंपनीज ब्रांडिंग करती है ओके सो ये ना डिपेंड करता है डाइटिशियन टू डाइटिशियन वो क्या रिकमेंड करती है मेरा जो पर्सनल व्यू है आई नेवर अलाउड माई क्लाइंट टू गो ऑन दिस सिंथेटिक बेस चाहे वो आपका शुगर फ्री हो या कोई भी एन नंबर XYZ कोई नंबर ब्रांड कोई भी ब्रांड हो rather Mhm. than opting the synthetic option फर्स्ट आप ट्राई करो कि क्या मैं इसका कोई नेचुरल ऑप्शन है अगर शुगर फ्री मेरे को लेना है उसका पहले कोई ऑप्शन सर्च करें अगर आपका कोई नेचुरल ऑप्शन है जैसे कि आप जैगरी भी ले सकते हैं अगर आपकी कम क्वांटिटी में अगर आप कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट से तो ही अगर आप वो वेल इक्विप्ड है विद नॉलेज तो वो सुने आपको नहीं है अगर अगर आपको वो आपको डाइट में देन जैगरी पाउडर भी ऐड करवा सकते हैं विदाउट रेजिंग योर ब्लड शुगर लेवल यस अगेन इसके कुछ और भी ब्रांड्स है जैसे कि आप स्टीविया यूज कर सकते हैं स्टीविया इज द मीठी तुलसी दैट यू कैन हैव अदरवाइज अवॉइड करें जितना ज्यादा सिंथेटिक फूड है Okay, great. Right. Thank you. So, like, we have like good organic jaggery. So, do you advise people to have organic jaggery in small content, like not much? Yes. See, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत सारी कंडीशंस होती है ब्लड शुगर लेवल बहुत रेस पे है मतलब बहुत हाई पे है तो उस पर हमें बहुत सारी चीजें कट डाउन करनी होंगी उस टाइम पे नो जैगरी नो हनी इवन बट Uh-huh. अगर आपको हम कुछ टाइम हमने बहुत हाई लेवल शुगर था हमने उसको मैनेज कर पाए हैं देन स्लोली स्टेडीली विद द राइट कॉम्बिनेशन एट द राइट टाइम वी कैन हैव जैगरी पाउडर Okay, thank you so much. This was actually my personal question because I want to make sure that whenever they have this sweet carving, I can at least give them little bit of jaggery. यस लिटिल बिट ऑफ जैगरी अगर आपको वो नाइट में मिल्क लेते हैं बिकॉज डायबिटिक पेशेंट को मैं मिल्क जरूर रिकमेंड करती हूँ बिफोर बेड टाइम बिकॉज Mhm. थ्रू नाइट थ्रू आउट द स्लीपिंग आवर्स वो दे कैन मेंटेन अ लेवल एक लेवल वो मेंटेन कर पाए तो उसमें यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ जैगरी वो उनका रेज नहीं करेगा तो जैगरी Uh-huh. को कभी भी मील के साथ में ही देना है और टी और Right. स्पून ऑफ अ जैगरी इन अ डे Uh-huh. एज अ स्नैकिंग के टाइम पे कि आपका मील में थोड़ा गैप हो उसके मील के साथ नहीं देना है थोड़ा Okay. गैपिंग के बाद आप दे सकते हैं but Okay. again you need a strong monitoring अगर बहुत severe diabetes है Yes, yes. Actually, they take insulin. So, okay uh, so as you said, like I can make sure that they're having in small quantity, but not at the meal time, yes before the meal time or any other time. So, yes gap होना चाहिए there should be a gap in between okay. So there is one question I'm gonna take. This is gonna be the last question. okay Do I need to follow a low carb diet if I'm a diabetic patient? This is okay from Kushi Singh. okay so Khushi this question is not only for you this is for whole whole lot of clients
जो कि जिनको लगता है लो कार्ब लेने से मेरा वेट कम हो जाएगा या डायबिटीज कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है गाइस। डायबिटीज में हमें एक लेवल सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करना आता है। यहाँ पे बात क्वांटिटी की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात क्वालिटी की हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको ऐड करने हैं बट ऑफ गुड क्वालिटी। मीन्स गुड क्वालिटी मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट। जैसे मैंने अभी आपको सुपर फूड्स में बताया, ब्राउन राइस, ओट्स आप ऐड कर सकते हैं, इनका ग्लाइसेमिक लेवल डाउन हो, मिलेट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो मोटा अनाज होता है, दैट यू कैन ऐड, दीज ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट। ओके। अगर डायबिटीज का पेशेंट आता है ना, तो डायबिटीज के पेशेंट में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है कार्ब्स पे। आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर है, देन स्मॉल स्मॉल स्नैकिंग है, उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। having low carb for the diabetes is not at all a solution. We need to work in the the proportion, the distribution of a carbohydrate and the quantity of the quality of the carbohydrate. Okay, okay. I hope this answered your question, Khushi. Thank you so much, Alpana ji. I'm like, I'm sure people who have put up the questions, they would be having a lot of doubts in their mind. And agar aapko kisi ko bhi questions hai, you can reach out to Alpana ji directly on her Facebook and Instagram page. And she is also there in our community. You can ask her any questions in our community and we can route it through us. So thank you so much once again, Alpana ji. And we're gonna close the session for Yes. today. Before ending, I want to give a huge thanks to Satviko for for considering me for this session, for this wonderful session, and I thanks to all of your audience for this wonderful participation and for listening me carefully. And I hope जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, जो भी सुपर फूड्स बताए हैं, वो आप उनको जरूर इंक्लूड करेंगे। Sure, definitely. I think, most of them already have this nuts and all, they would be taking it, and then, you telling it, and diabetes ke jo bhi patients hain, they would be listening you very carefully, and this was very interactive session for sure. Thank you so much. And if you guys have any questions, you can follow us on our Facebook community page, Live Satviko, and you can follow us on Facebook page called Satviko. And you can follow us on Instagram too. Thank you so much all. And we'll see you again in the next live session. Bye-bye. Bye bye. Take care. Bye. Yeah, take care. Bye.